तो आई डिड द INA एंड द QEP कोर्स. QEP रियली हेल्प मी बिकॉज वो पूरा बैकग्राउंड बिल्ड कर देता है. इट्स नॉट जस्ट वन टॉपिक, इट्स नॉट जस्ट सर्विसेज सेक्टर कैसे था पहले, अभी कैसा है, व्हाट आर द इश्यूज, वे फॉरवर्ड, खत्म. मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से था. दैट रियली हेल्प बिकॉज आई हैड टू कोप अप इन दैट वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. 10-15 दिन में एनीवेज रिजल्ट आ जाएगा एंड देन वी कैन डिसाइड. रिजल्ट्स केम, आई डिड क्लियर द प्रीलिम्स एंड देन आई रिमेम्बर यहीं सामने कहीं बैठती थी मैं क्लास में, इस साइड बैठती, दोनों साइड बैठी थी, बट आई यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट, वेरी वेरी सिंसियर. आई वॉज सिंसियर सर. एंड सो सर की एक आदत है, यू सीन ना, वो जनरली क्लास स्टार्ट करते विद अ क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन लिखा होगा, यू अटेम्प्ट द आंसर एंड देन सर गिव्स यू हिज फीडबैक. आई रियली लव दैट स्टाइल ऑफ टीचिंग बिकॉज इट गिव्स यू अ क्विक revision, quick idea of where you land in terms of answer writing. No one focuses on answer writing this early. सब पहले बोलते हैं यार पूरा content कर लो, prepare कर लो, notes बना लो, notes revise कर लो. I think that story became very popular कि there was this lady who asked me a question about how IIT Bombay is a very bad environment. वहाँ गाय वगैरह घूमते रहते हैं, this that. I was definitely getting pulled into a corner at that point क्योंकि मैं कुछ भी बोल रही थी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था. तो then I tried to make light of the situation. I said कि मैम actually it's very unjustified. हम 2-2 साल 4-4 साल इतना मेहनत करके यहाँ आते हैं and these cows just had a free pass. मतलब ये तो बहुत ही गलत है. And then somehow the whole panel like started laughing. Hi, my name is Simi Karan, 2020 batch IAS officer. So basically, first I'll tell you a brief about how I planned and how did I land up in this job firstly. And अगर फिर आपके कुछ जो doubts रहेंगे, then we'll take that up. I went to college and there was no plans. ये मेरा बचपन का सपना नहीं था. That was not me. I was thinking of doing an MBA or a master's abroad. That was my plan all along. But somewhere around the 3rd year, I realized that, perhaps this is a job that can give me the opportunities that I'm looking for. Mostly the job diversity, the sectors that we get to work in, that is something that excited me. After the 3rd year, I did an internship in my 3rd year, did not like it at all. It was a technical internship. I did not like it at all. After that, I decided कि ठीक है, let's just focus on preparation. So one of the major decisions at that point that I had to take was, should I sit for placements? That's a question 4th year में सब कोई सोचता है because that's what occupies your majority of time during that period. Then I decided कि नहीं, if I have to give this exam seriously, let's just give it very focused तरीके से, and I decided to opt out of placement. And I think that was a very critical decision क्योंकि वो बहुत it plays over your mind. जब आप final semester में होते हैं, लोगों के jobs लगे होते हैं, सब party कर रहे होते हैं, that is the core preparation time जब आपको खुद को उन चीज़ों से separate रख के prepare करना होता है. So that was a major decision I took. It also definitely saved me time. I was preparing throughout my final year. After December, more or less, I became very, very serious कि I have to give this attempt. So let's just prepare in a very focused manner. Prelims दिया. Fast forward to prelims के next day, marks calculate किए. It came to somewhere around 90 to 100, 85 to 100, 105 ऐसा लग रहा था मुझे. I was feeling like कि for sure I am not clearing this prelims. So मैंने थोड़े सर के videos देखे थे पहले. So I really wanted to take his guidance. So I came, I met him. I think I might be like, sir ने ऐसे तो मेरे जैसे बहुत लोगों को देखा होगा who come कि sir ऐसा ऐसा है. So sir asked कि क्या कौन सा कोचिंग करना है, like foundation course कर लो, this that. मैंने बोला सर मैं तो prelims तो दे के आई हूँ, बट मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, 85 to 100 टाइप का आ रहा है, फॉर श्योर क्लियर नहीं होगा ये वाला अटेम्प्ट. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. लाइक आई वाज वेरी फोकस कि ठीक है ये वाला तो गया है, अगले साल हम करेंगे अच्छे से. सो सर आई थिंक ही थॉट फॉर अ मिनट और सो एंड ही सेड कि नहीं, आई थिंक इट इज इन द कंफर्टेबल रेंज कि हो सकता है क्लियर. एंड लाइक सर मस्ट हैव सेड कि वो जो एक विशियस साइकिल हो जाता है ना, प्रीलिम्स क्लियर हुआ फिर मेंस का प्रिपरेशन ढंग से नहीं. आई वाज एग्जैक्टली देयर. लाइक प्रीलिम्स का ही क्लियर इतने मुश्किल से कैसे तैसे तो मतलब पढ़ा था, मेंस का नोवेयर इन द होराइजन ये पिक्चर में था. एंड आई थॉट कि ये वैसी साइकिल में मैं फंस जाऊंगी. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड कि सर लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर.
बट ठीक है, सर सेड लेट्स फोकस राइट नाउ पे, यू फोकस ऑन द अपकमिंग मेंस, 10-15 दिन में एनीवेज रिजल्ट आ जाएगा एंड देन वी कैन डिसाइड. रिजल्ट्स केम, आई डिड क्लियर द प्रीलिम्स एंड देन आई रिमेम्बर यहीं सामने कहीं बैठती थी मैं क्लास में, इस साइड बैठती, दोनों साइड बैठी थी, बट आई यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट, वेरी वेरी सिंसियर. I was sincere, sir. And but so sir की एक आदत है, you've seen ना, वो generally class start करते with a question, like question लिखा होगा, you attempt the answer and then sir gives you his feedback. I really loved that style of teaching because it gives you a quick revision, quick idea of where you land in terms of answer writing. No one focuses on answer writing this early. सब पहले बोलते हैं यार पूरा content कर लो, prepare कर लो, notes बना लो, notes revise कर लो, फिर answer writing पे आओ. But I don't believe in that. I believe यार जो भी content है at the एक दिन day -1 यही लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है, और जो ज्ञान दिमाग में रह गया उसी से लिख के आना है. So why not just start answer writing parallelly? Like I said, उस टाइम पे तो मेरा content खत्म हो यही टेंशन हो रहा था. But because of that answer writing practice, मेरा बहुत ज्यादा फोकस उस पे भी गया. And I remember one day सर ने मेरा एक आंसर चेक किया, मेरे को तो लगा था ऐसी बेकार है, कुछ तो आता नहीं है मुझे, तो ठीक है दिखाई देते और कितना ही खराब हुआ हो सकता है. सो दैट्स अनदर इनहिबिशन यू हैव टू ओवरकम, कि मैं आई हैव नॉट रीच दैट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन कि मैं स्टार्ट कर सकूं आंसर राइटिंग. दैट्स अ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि कब आंसर राइटिंग. देयर इज नो लेवल यार, मतलब जस्ट स्टार्ट, लेट्स जस्ट सी वेयर यू आर एंड मेक अ मूव फ्रॉम देयर, उस तरह से. तो सर कॉल्ड मी विथ माई आंसर कॉपी, बोला कि क्लास के बाद मिलना. मुझे लगा कि बहुत ही खराब है क्या आंसर, मतलब इतना तो खराब नहीं हो सकता. तो देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, देखो सिमी, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग means this time and UPSC हो सकता है if you give this attempt in a very focused manner. And I am telling you, that's the first time someone had shown me that confidence in myself कि मैं clear कर सकती हूँ. Because तब तक तो मुझे लग रहा था भाई मैं क्यों फंस गई यहाँ पे, क्यों प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अब मेंस में फंस जाऊंगी, फिर इंटरव्यू में फंस जाऊंगी, कहीं ना कहीं फंस जाऊंगी. But that was a huge boost. मतलब I can't tell you how much it boosted my confidence कि I can go through it. तो हमारे टाइम पे around 3.5 months का गैप था. We had mains in September mid. तो तब तक बहुत रगड़ की प्रिपरेशन किया. आई हैड टू डू माई ऑप्शनल ऑल्सो इन दैट टाइम बिकॉज मेरे पास पहले समय नहीं था, जस्ट हार्डली सीन द सिलेबस और सो. बट दैट्स नॉट समथिंग आई एडवाइज, बट आई हैड टू वर्क माई एस ऑफ. मतलब लिटरली आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम आई थिंक easily upwards of 12 to 14 hours a day because इतना कुछ है प्रिपेयर करने को. Now another thing that really helped me, अब मैंने बोला कि अच्छा सर आप बोल रहे हैं क्लियर होगा, तो आप बताइए कैसे क्लियर होगा. मतलब मुझे तो कोई क्लू नहीं लग रहा है इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कैसे हो सकता है. तो ही सेड कि सी मेजर है तुम्हारा, एक तो है स्टैटिक पोर्शन, वो तो तुम्हारे बेस बुक्स हैं ही, उसके अलावा तुम्हारा एक करंट अफेयर्स पोर्शन है, एंड देन मीन्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना. यू डोंट जस्ट रीड लेट्स से CAG, यू रीड अपार्ट फ्रॉम उसका जो बेसिक्स है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, व्हाट इज द करंट सिनेरियो लाइक, वो रेलेवेंस, वो फ्लो आना जरूरी है. सो आई सेड कि यार सर मैं इतने सारे अलग अलग मटेरियल को कैसे कंपाइल करूंगी, मेरे पास पॉसिबल नहीं होगा. तो एट दैट टाइम ही गेव मी लाइक, उस टाइम में उन्होंने बोला था कि बाय दैट टाइम आई हैड नॉट जॉइंड QEP शायद सर, तो सर ने पहले की क्लासेस का वीडियो दे दिया और नोट्स वगैरह दे दिए, एंड ही सेड इसी में से छांट के पढ़ो, मतलब ऑल ऑफ इट इज देयर, यू जस्ट फिल्टर इट आउट एंड रीड, मतलब जितना जितना याद रह रहा है वैसे करते जाओ. एंड आई हैड जॉइंड द INA बिफोर एंड दैट वाज हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल बिकॉज सारा का सारा कंटेंट एक जगह था. सो व्हाट आई हैड टू डू वाज जस्ट सी कि मुझे क्या क्या याद रख सकती हूँ, व्हाट इज द रेलेवेंट सेक्शंस दैट आई कैन रिमेंबर, एंड कीप रिवाइजिंग द सेम नोट्स ओवर एंड ओवर अगेन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be very specific in what you read. You can read anything under the sun और वो खत्म नहीं होगा. So be very practical and be very specific कि क्या पढ़ सकते हो. तो I did the INA and the QEP course. QEP really helped me because वो पूरा background build कर देता है. It's not just one topic. It's not just services sector. कैसे था पहले, अभी कैसा है, what are the issues, way forward, खत्म. मतलब बहुत ही structured तरीके से था. That really helped because I had to cope up in that very short amount of time. And then I gave my mains. मेंस के बाद सब एज यूजुअल छुट्टी वुट्टी ब्रेक लिया, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट बिकॉज मुझे पता था फॉर श्योर. आई एम टेलिंग यू, इन बिटवीन द मेंस आई हैड अ ब्रेक डाउन. एट वन पॉइंट
जो GS पेपर 2 है दैट इज ओवरलैपिंग विद PSIR, तो टेक्निकली मेरा तो GS पेपर 2 बहुत ही बढ़िया गया होना था, बट आफ्टर GS पेपर 2 आई रिमेम्बर क्राइंग बिकॉज मुझे लगा था कि नहीं होगा, एंड उस टाइम पे भी डेली रात को सर को कॉल करके कि सर क्या हो रहा है, मतलब व्हाई एम आई डूइंग दिस इन माई लाइफ, बट ये क्वेश्चन आते हैं। उस टाइम पे मेरे को लग रहा था देते ही नहीं है ना, 3 और 4 देने का फायदा क्या है, मतलब इतना खराब अगर पेपर 2 गया तो बाकी उससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। सो दैट वाज द एटीट्यूड, मतलब इतने टेंशन में थी मैं, बट देन हो गया। एंड देन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आना था, अगेन आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि नहीं होगा क्लियर, बट सरप्राइजिंगली आई डिड क्लियर। एंड इंटरव्यू टाइम पे वन थिंग दैट रियली हेल्प वाज जो ऐसे लंबा सा क्वेश्चन पेपर लिस्ट, क्वेश्चंस का लिस्ट एक देते हैं सर, टॉपिक वाइज तुम्हारा, जैसे योर डैफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टेट के रेलिवेंट क्वेश्चंस तुम्हारा, सर यूज टू गो वेरी डीप डाउन, लाइक थिंग्स यू वुड नॉट इवन थिंक ऑफ, स्कूल का ओरिजिन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नेम का मतलब, ऑल द जनरल क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस स्पेसिफिक टू योर डैफ he gave them. Then I was giving the mocks, I was constantly coming back and forth discussing with sir. Another thing that really helped was उन्होंने जैसे for example there are questions which come up जिनका अगर आप पहले से आंसर्स प्रिपेयर, if it's a normal interview, मतलब स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं है, कुछ तो जनरल क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, फेमिनिज्म, रिजर्वेशन, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स अभी चल रहा होगा, लेट्स से चाइल्ड मैरिज, ऐसे टाइप की चीजें वो आती ही हैं, यू नो दे आर गोइंग टू कम, सो बेटर प्रिपेयर बिफोर हैंड। सो आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था ऑन रिजर्वेशन, इट वाज अ गुड 1 minute रैंट टेलिंग कि यार तुम तो जनरल कैंडिडेट हो, देखो तुम कितना सफर करते हो, रिजर्वेशन हटा ही देना चाहिए, इट्स अ वेरी बैड थिंग, दिस दैट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली ट्राई टू पुल यू इनटू अ कॉर्नर कि तुम एक एक्सट्रीम स्टैंड ले लो। सो देयर हाउ डू यू नेविगेट थ्रू विद अ वेरी बैलेंस्ड आंसर? This exact topic I discussed with sir. I had told him कि like we had discussed this back and forth and we had built this idea कि हम ऐसे बोलेंगे कि reservation per se as a concept is very very relevant and very important because it has helped to sort of try and remove the years of hierarchy that we have right now, but like we now have to talk about multiple types of deprivation. Why are we just focused on the caste angle? A transgender does not get the benefit of reservation, an orphan child does not get the benefit of reservation because no one knows his caste. So now we need multiple levels of deprivation. We need to have a deprivation index, and based on how much a person is deprived, we need to give them the benefit. So they were very satisfied with the answer, and you can tell from these from the panel's expressions, reactions, the kind of counter questions that come up, they were very very satisfied. So this happened because we had discussed this before. अभी बैठे बैठे मैं वहां पे ये चीज नहीं सोच पाती, and it would not have come up like that. So these kind of things. So I am very grateful to sir for the mentorship that he gave me because it was very personalized, and I was honestly not expecting that kind of reaction from any teacher per se. So that's about it. मतलब फिर result आया. I cleared again, not expecting at all, but I did. And so yeah, that's my journey more or less. मैं बहुत फास्ट बोलती थी और बहुत एम्फेटिकली बोलती थी, तो वन थिंग that kept coming up in my interview, like जो feedback था, तुम you come out as very as a very क्या था sir, I got very angry when I got that feedback. like he said कि like, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह लगता है, लाइक योर फेस एंड योर बॉडी डज नॉट मैच विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट यू कम आउट एज। लाइक पहली बात तो ये हु इज पासिंग दिस जजमेंट कि इस फेस के साथ ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बट दैट डेफिनेटली मेड मी रियलाइज आई नीड टू टोन इट डाउन, need to slow down. It's not just the words, the way you portray it, the way you gesture, the way you try to make eye contact with everyone, trying to engage everyone at the same time. That is very important. So the same interview panel which gave me the second highest marks in the interview, I think तो एक दिन में जैसे 6 जन का होता है इंटरव्यू, 2 or 3 of the other people told me कि यार वो लोग कितने बोर्ड थे. They were throughout the interview, they felt like I felt कि उन लोग को कोई कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. Everything was boring, and that's how my interview also started. Like there were very boring questions coming up. It felt like no one was interested. But like I think that story became very popular. कि there was this lady who asked me a question.
about how IIT Bombay is a very bad environment. वहाँ गाय वगैरह घूमते रहते हैं, this that. I was definitely getting pulled into a corner at that point क्योंकि मैं कुछ भी बोल रही थी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था. तो then I tried to make light of the situation. I said कि मैम actually it's very unjustified. हम 2-2 साल 4-4 साल इतना मेहनत करके यहाँ आते हैं and these cows just had a free pass. मतलब ये तो बहुत ही गलत है. And then somehow the whole panel like started laughing. And after that I could see the energy of the interview panel change, the kind of questions that came up. How do I know they were engaged? The kind of answers I gave unse questions bana ke पूछ रहे थे the next panel member. That shows that they're engaging with you. So like that really helped, like to engage and then slow down, have a conversation उस तरह से. Same engineering background. And first attempt ज़्यादा idea नहीं था, didn't know. I think the first time I entered a collectorate was only after clearing the exam, the day when I cleared the exam. But ज़्यादा seniors को जानते नहीं थे हम. So what I did at that point is सबसे पहले मैंने ना जाके, and I suggest this to everyone, first thing is obviously your syllabus, second thing is your previous year questions, and third thing is a few topper videos. बट ऐसी किसी का भी, अरे ये श्रुति शर्मा केम फर्स्ट सो इनका वीडियो देख लेते हैं, टुमारो समवन एल्स कम्स फर्स्ट फिर देख लेते हैं. तो मतलब मार्केट में बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस है. आई डिड नॉट डू दैट. आई सॉ कौन लोगों का बैकग्राउंड एंड स्टेज ऑफ प्रेपरेशन इज सिमिलर टू माइन. तो जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड मुझे कॉलेज की डेज के साथ प्रिपेयर करना था. दैट वाज माय चैलेंज. तो इसको रखते हुए रेलेवेंस मैंने ढूंढा. सो देयर वर अ फ्यू लाइक सौम्या शर्मा मैम थी एंड फ्यू अदर्स वर देयर. उनका मैंने टॉपर्स वीडियोस निकाला. सम IIT बॉम्बे के थे सीनियर्स वगैरह, उनका निकाला, उनका देखा स्ट्रैटेजी. देन आई फिगर्ड आउट कि यार मुझे ये करना है, गिवन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव, गिवन द सिचुएशन वेयर आई एम राइट नाउ. उसमें लाइक दैट रियली हेल्प्स टू कंसोलिडेट योर बुक लिस्ट. वो करना बहुत ही जरूरी है बिफोर लाइक जंपिंग इन. बुक्स बहुत स्टैंडर्ड होते हैं. डोंट ट्राई टू लुक फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या यूनिक. ऑलमोस्ट सारा कंटेंट सेम होता है. मोर रेलिवेंट क्वेश्चन इज हाउ मच आर यू रिटेनिंग इन योर हेड. वो कैसे याद, लाइक ही आस्क्ड की रोट लर्निंग लगता है. यस, प्रीलिम्स तो काफी सारा रोट लर्निंग है, दैट इज एक्सेप्टेड. But then there's nothing, no other way than to keep revising. अब रिवाइज करने का भी तरीका होना चाहिए. You imagine yourself one day before the prelims. उस दिन कितना कुछ करना है in a very short time. तो उस स्टेज तक पहुंच पाना कि तुम्हारा सारा कंटेंट एक दिन में रिवाइज हो सके just before the prelims, that's the stage that you're looking for. तो पहला चीज, सपोज पहले दिन तुम्हारे notes takes you 15 days to revise. Next time it should take you ideally 7 days to revise. Then it should come down to 3 days, then 2 days, then 1 day, and so on and so forth. तो उसमें मैं अपने notes में highlight कर लिया करती थी, then उसको box बना दिया, then mark कर दिया, just these keywords should keep throwing up. उसमें then the way you note them down also matters. जैसे जितने कमीशन के रिपोर्ट्स हैं कितने, उनको तो सारा का सारा याद रखना मुश्किल है. So only remembering the highlighted ones, mark करके separately रख लिया, मे बी वॉल पे चिपका दिया, whatever works for you. मतलब you have to figure that out. बट जैसे आर्टिकल नंबर्स मैंने लिस्ट एक बना के रखी थी, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिस्ट बना के रखी थी, कमीशन क्या जो पॉइंट्स हैं उनका एक लिस्ट बना के रखा था. तो दैट स्पीड्स अप योर रिविजन. तो कॉन्स्टेंटली योर फोकस शुड बी, एक दिन पहले अगर मुझे रिवाइज करना है तो मुझे किस तरह से करना होगा, उस हिसाब से नोट्स बना के एंड देन गोइंग बैक टू देम अगेन एंड अगेन. कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज यू आर नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ. यू डोंट नो ना वेयर यू स्टैंड. अब मैंने पढ़ तो लिया प्रेसिडेंट, कल को मुझे पूछे कोई क्वेश्चंस 2 दिन बाद तो देख फिर पता चलेगा. सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज, एक तो तुम्हारी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं, मतलब सॉर्टेड आते हैं कि प्रेसिडेंट के सारे क्वेश्चन, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन एक जगह, पॉलिटी में भी प्रेसिडेंट चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह. वन थिंग आई यूज्ड टू डू वाज, एक बार पढ़ लिया, एक दिन बाद, एक दिन का गैप देके उसके बाद लाइक प्रीवियस डे में क्या पढ़ा था उसका एक बार क्वेश्चंस देख लेती थी. एम आई एबल टू अटेम्प्ट इट. उससे ये भी पता चलता है कि उस पूरे चैप्टर में क्या रेलेवेंट है, कि एम आई रीडिंग दैट, वो कर रही हूँ कि नहीं, वो जानने के लिए भी इट इज रियली रियली हेल्पफुल. ऐसे बहुत सारे पॉलिटी में ही ऐसे सेक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 356 और वो सब, जहाँ पे यू इतना कुछ है रटने को, उसमें भी कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है उस चीज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर वेरी हेल्पफुल, कि मैं सही पॉइंटों को रट रही हूँ कि नहीं. एंड बेटर टू गो बैक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन सम कोचिंग के
क्वेश्चन पेपर्स, दे विल कम लेटर. पहले मैं सो फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठना है उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, प्रीवियस ईयर के जो भी वो वाले रेलेवेंट क्वेश्चंस, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, पढ़ो, मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जब बाद में नेक्स्ट टाइम रिवाइज किया उसके बाद वही क्वेश्चंस वापस देख लो ना कि whether you are able to attempt them or not. So एक चीज जो जनरली हेल्प करती है इज बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कोर्सेज अर्लियर. जनरली लास्ट ईयर हम फ्री रखते हैं किसके लिए, या तो प्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं या फिर जीआरई वगैरह का देख रहे होते हैं या फिर पीजी का देख रहे होते हैं, कुछ तो उसके लिए ही रखते हैं टाइम को. सो उस हिसाब से माई फाइनल ईयर वाज रिलेटिवली इजियर कंपेयर टू माई प्रीवियस ईयर्स. दूसरा चीज ये था कि I used to do like I didn't turn off social media completely. I was on Facebook, I was on all the other platforms, but whatever the relevant things are to me, for example the Hindu, the Indian Express, उनको subscribe करके डिफॉल्ट में ऊपर रख दिया था. तो whenever I'm scrolling through पहले 5-6 चीजें मेरे relevance की दिखती हैं, तो 1-2 आर्टिकल लेट्स से खोल के पढ़ लिया उस तरह से. आई यूज्ड टू रीड द ई न्यूज़पेपर, द हिंदू का ई मोड जो आता है, तो वो मोबाइल फोन में बहुत इजीली हो जाता था. आई वाज मेकिंग ई नोट्स इफ दैट हेल्प्स. मतलब मेरे को ई नोट्स बहुत इजी लगते हैं बिकॉज कहीं पे ऊपर नीचे करना है, सॉर्ट करना है, आगे पीछे करना है, वो इजीली हो जाता है उन नोट्स में. सो दैट हेल्प्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी क्लासेस के बीच में टाइम मिलता था उस टाइम पे पढ़ लिया, थोड़ा किसी कॉर्नर में बैठ लिया, लाइब्रेरी में बैठ लिया, उस तरह से. तो यू जस्ट हैव टू लाइक कीप पुटिंग दिस थिंग इन बिटवीन योर रेगुलर स्केड्यूल. ऐसा मत सोचो कि यू विल गेट अ ब्लॉक ऑफ 6 आवर्स टू स्टडी तभी मैं शाम को आके पढ़ूंगा. वैसे सोच के करने से देन कॉलेज के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आई पर्सनली बिलीव कि न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट जस्ट फॉर कॉन्टेंट. Newspaper reading is for building your own perspective also on different matters. How do you build your perspective on, let's say, child marriage? And child marriage को tackle करने के लिए क्या करना है? How do you build a perspective? You hear 10 people, you hear 10 people's arguments, and then come to your own conclusion. That's where the newspapers are really relevant. Ideally, you should be able to cover your newspaper in 30 minutes of time. अब शुरू में नहीं होगा बिकॉज शुरू में यू डोंट नो व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज नॉट. उस टाइम पे भी जो भी तुम स्टैटिक में पढ़ रहे हो, इफ यू कीप रिमेम्बरिंग कि अच्छा मैंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में पढ़ा था, इसके ऊपर महाराष्ट्र में कुछ हुआ है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लिया, कितना रेलेवेंस है उस आर्टिकल का वो पढ़ते पढ़ते आएगा, फ्लो में आएगा. जितना जितना तुम्हारा स्टैटिक का प्रिपरेशन होता जाएगा उससे पता चलता जाएगा. आई डिडंट मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स. मुझे अगर कोई टर्म अच्छी लग गई या कोई एग्जाम्पल अच्छा लग गया तो उसको मैं उस रेलेवेंट जीएस पेपर के अंदर जाके डाल देती थी बिकॉज इट वॉज माई ई नोट्स. मैं इजिली जीएस 1 2 3 4 के 4 थे, उसके अंदर जाके वो एग्जाम्पल को डाल दिया सो दैट आई कैन कोट लेटर इफ आई रिमेंबर. अदर देन दैट नोट्स तो आपको मार्केट में मिल ही जाएंगे न्यूज़पेपर के, सो यू कैन गो एंड रिवाइज फ्रॉम देम. न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक चीज है कि थोड़ा फास्ट रीडिंग का तरीका समझना पड़ेगा. फास्ट रीडिंग में क्या होता है, यू डोंट रीड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, यू ट्राइंग टू गेट द जिस्ट ऑफ द आर्टिकल. अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, मैक्सिमम 10 15 20 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में जिस्ट आना चाहिए. कीवर्ड्स हार्डली उसमें से 10-15 निकलेंगे मैक्स टू मैक्स. मतलब इट्स द एक्सट्रीम एंड जब मैं बोल रही हूँ. एंड अगर सपोज और एक ही टॉपिक पे जनरली इफ यू सी इफ इट्स इन द न्यूज वो बार बार आर्टिकल्स आते रहेंगे, इफ यू सी कि यार जस्ट समझ आ गया है, ये रिपीटेटिव लग रहा है, देन यू कैन स्किप इट. एडिटोरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी आई यूज टू स्किम थ्रू. अगर कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंस का हुआ, सपोज जैसे जो मणिपुर वाला इशू अभी चल रहा है, इट्स नाउ इन नेशनल मीडिया. एक टाइम ऐसा हुआ होगा जब वो एक बहुत ही छोटा सा इरेलेवेंट आर्टिकल कहीं पे आया होगा कोई लोकल न्यूज के सेक्शन में, सो ओके ठीक है मणिपुर में ऐसा चल रहा है, दिस माइट कम इन द न्यूज, ठीक है करके स्किप कर गए. यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी. मतलब कोई मर्डर कर दिया, दैट्स नॉट योर रेलेवेंस. कोई डकैती हो गई, नॉट योर रेलेवेंस. व्हाट इज रेलेवेंट इज अगर लेट्स से वो जैसे लेट्स से GS4 में केस स्टडी में आ सकता है कि ऐसे कोई मेजर इंसिडेंट हो गया, हाउ विल यू डील दैट एज एन SDM. तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कुछ एग्जाम्पल दिया हो कि SDM ने ऐसे ऐसे किया इसको सॉल्व करने के लिए, दैट कैन बिकम अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज योर रेलेवेंस. लेट्स से पॉलिटिकल न्यूज, ये पार्टी गिरी, ये सरकार उठी, these individual personality news not relevant, but what becomes relevant is polity. Let's say tomorrow some party comes in power and then mid-term party change हो गई,
तो देयर मस्ट बी सम बेसिस, उन्होंने कैसे किया है, दैट बेसिस बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज दैट इज योर पॉलिटी पार्ट. तो यू हैव टू वेरी माइन्यूटली हैंड पिक व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्टोर इन द ब्रेन. मतलब मेरा फंडा बहुत क्लियर था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें रहेंगी नहीं. मेरा इंजीनियरिंग वाला दिमाग चलता है, बहुत छांट के चीजें ही रहती हैं, लंबा लंबा मेरे दिमाग में रहता नहीं है. तो एकदम ही फिल्टर करके, सॉर्ट करके, सिलेक्टिव चीजें दिमाग में रखना है. दैट्स वेयर यू आर डूइंग द मैनुअल वर्क, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द रीडिंग, कि बाद में योर वर्क बिकम्स इजी. ओके, सो इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स आई डिड नॉट जस्ट हैव फॉर PSIR, I had it for everything wherever possible. So intros and conclusions का फंडा ये है, when you do answer writing, when you will start ना, the moment you start writing, you will realize one thing. यार बीच का भरने का तो मुझे पता है, इश्यूज पता है, सोल्यूशंस पता है, शुरू में क्या लिखना है और आखिर में क्या लिखना है, वहीं जाके हम अटकते हैं. एंड दैट्स वेयर यू लूज योर प्रेशियस 1 1 2 2 3 3 4 4 मिनट्स. ठीक है, और अगर दैट एड्स अप इन एवरी आंसर ना, तो यू एंड अप मिसिंग द, लाइक डूइंग एन इनकम्प्लीट पेपर, विच इज अ सिन. आई बिलीव नॉट कंप्लीटिंग अ पेपर इज अ सिन. कुछ तो भर के आना है. अगर कंप्लीटली कोई आंसर नहीं पता, मतलब कंप्लीटली नहीं पता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ये नहीं होना चाहिए कि योर टाइम रन्स आउट. तो उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए आई वॉज डूइंग दिस इंट्रो एंड कंक्लूजन थिंग. सो लेट्स से आई विल गिव यू GS का एग्जांपल एंड देन आई विल गिव यू PSIR का. तो GS में जैसे लेट्स से एग्रीकल्चर में तब वो चल रहा था, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2024. अब तो वो नहीं यूज हो सकता, बट तब चल रहा था डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2024. तो ये मुझे पता था एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन आएगा, एक किसी का मतलब कंक्लूजन ये है. सो दैट्स सॉर्टेड. एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पक्का आता है, दिस कंक्लूजन कहीं ना कहीं चिपकाया बहुत इजीली जा सकता है. सो दैट वाज डन. वैसे ही सम इंट्रोडक्शंस वर आल्सो प्रिपेयर्ड, सम स्टैट्स, सम फिगर, सम एग्जांपल, सम डेफिनेशन, उस तरह से. सिमिलरली फॉर PSIR में जनरली व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू शो बोथ multiple schools of thought and then you bring a small conclusion towards the end. तो conclusion में जरूरी नहीं कि always give your perspective. You can end with someone's some quote, someone's some line, some अभी का अगर कोई recent में कोई किसी person ने कोई concept दिया है, that thing you can bring in. तो वो मैं chapter wise, topic wise, in fact like drill it down to the base level possible. Like agriculture में भी अगर food processing का आया तो ये conclusion होगा, अगर इसका आया तो ये conclusion होगा, उस level तक drill down करके उनको लिखती थी. And then I would keep a separate list of it. उसी के material के साथ सामने में एक list होता था of introductions and conclusions, just the keywords, and then I used to go back and keep revising it. When you say justice as a concept, उसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट दिया, उसमें 2-4 टर्म्स तो निकल ही आते हैं, उनको यू कैन यूज. अदरवाइज देयर आर सर्टेन लाइंस दैट यू कैन यूज गिवन बाय अ पर्सन. मैं जनरली याद नहीं करती थी, बट 1-2-3 लाइन सब थिंकर्स का याद कर लेती थी. कोई भी एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया था जिसमें अगर कोई आदमी ऐसे नॉर्मली लिखता एज अ GS पेपर, वो बस ऐसे ही लिख देते कि हाँ ये हुआ था, दिस पर्सन डिड दिस पर्सन डिड दैट. वो नहीं करना था. वी हैड टू डील विद दैट क्वेश्चन फ्रॉम स्कूल्स ऑफ थॉट पर्सपेक्टिव. तो आपके 4-5 स्कूल्स ऑफ थॉट है, लिबरलिज्म, तो उनको ले आया, उस पर्टिकुलर इशू को उस पर्सपेक्टिव से डील कर दिया कि he would have called this as this, he would have called this as this, and then bring a conclusion. How did I internalize multiple revisions? There's no other solution, but I had a good schedule to it. So on Saturdays, Sundays, I would write one question, one GS paper, and इज्जत से लिखती थी. Like if it's a 3-hour thing, a 3-hour thing. If it's a half test thing. मैंने बहुत कम full tests लिखे थे because I had very little time to prepare. But suppose वो बेंचमार्क सेट हो गया कि संडे को मेरे को फुल टेस्ट देना है, तो पूरे वीक में अपना तो पढ़ाई चलता रहता था, बट डेली शाम को आधा घंटा 1 घंटा रिविजन. तो मुझे पता है ना मेरा ये टारगेट है, इसके हिसाब से रिवाइज कर रही हूँ मैं. तो एक टारगेट सेट कर देने से द रिविजन बिकम्स फास्टर. अदरवाइज वी जनरली फॉरगेट कि नया पढ़ लेते और पढ़ लेते हैं. तो टू स्टॉप दैट यू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ एंड उसके हिसाब से रिवाइज करते रहो. एंड लाइक आई सेड, पहले 1 घंटा लगेगा, अगली बार आधा घंटा, देन 10 मिनट्स. उस चीज को दिमाग में रखते हुए आई वॉज रिवाइजिंग. दैट्स हाउ आई ट्राई टू इंटरनलाइज इट. अ मंथ, लेट्स से पूरा जब साइकिल देखें तो 1 महीने बाद एक आप कर सकते हो, या फिर जैसे प्रीलिम्स का हम देखें प्रिपरेशन, डू इट आफ्टर अ मंथ, देन लेट्स से डू इट आफ्टर 15 days, देन डू इट आफ्टर 7 days. तो इस तरह से कर सकते हो. एंड
शुरू में क्या आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ रहे होते हो ना, दैट टाइम यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, ऐसे लगता है कि सब तो याद रहेगा नहीं. उस टाइम पे डोंट इवन ट्राई टू रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू रीड थ्रू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल मिस आउट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम. तो उस पे फोकस करके देन मेरा जो भी रेलिवेंट चीजें था उसको तो मैंने मार्क तो कर ही दी थी. फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रीडिंग तक तो मार्क हो ही जाती कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन सम पीपल पूरे को हाईलाइट कर देते हैं, पूरा चीज को पूरा एट सम पॉइंट उनका पूरा पन्ना ही हाईलाइटेड रहता है. दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. तुम्हारे पेज पे एट मैक्स 15% ऑफ योर पेज एट मैक्स शुड बी हाईलाइटेड. एंड अगर पूरा ही पेज हाईलाइट हो जा रहा है मतलब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज नॉट. वो समझना जरूरी है. एंड वंस दैट इज मार्क द नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली इट विल बिकम ईजियर. बट पर से आई डोंट थिंक मैंने कुछ एक टाइमलाइन रखा था कि इतना, ये रखा था कि मुझे 3 महीने में ये पूरा खत्म करना है. तो इस 3 महीने में कैसे खत्म करना है फिर वो करो उस तरह से. प्लानिंग के टर्म्स में अनदर थिंग आई डू वेरी लाइक डीप डाउन प्लानिंग कि जैसे 1 महीने का तो स्केड्यूल बनाया, इस हफ्ते का भी एक बनेगा कि इस हफ्ते में मुझे ये कवर करना है, इस हफ्ते में कवर करने के लिए मुझे इस दिन में ये कवर करना है, इस दिन में कवर करने के लिए अगले 1 घंटे में मुझे ये कवर करना है. दैट्स जस्ट हाउ माई ब्रेन वर्क्स. लाइक इफ आई प्लान इट आउट, मेरे दिमाग में वो प्रेशर रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ते रहना है. अदरवाइज क्या फ्लो में हम बह जाते हैं, पूरा दिन भर हिस्ट्री पढ़ा बट कितना पढ़ा, क्या रेलेवेंस रहा, आर वी स्टिकिंग टू द टाइमलाइन दैट वी सेट फॉर आवरसेल्व्स, वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो यू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ कि देयर इज अ क्लॉक टिकिंग एंड अकॉर्डिंगली आप पढ़ो. That helps. Yeah, a lot of people go for technical optionals. Mathematics काफी लोग लेते हैं, उसमें काफी अच्छे मार्क्स आते हैं. At that point, जब मैं ऑप्शनल चूज कर रही थी अराउंड दिसंबर ओनली, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री एंड PSIR. केमिस्ट्री का नॉलेज ठीक ठाक था, मुझे लग रहा था हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल का आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो आई हैड एनीवेज रिमूव्ड इट. या तो लाइक इवन आर्ट्स ऑप्शनल्स भी देखे थे. आर्ट्स ऑप्शनल्स में से 2-3 था कि या तो एंथ्रो, सोशियो, PSIR या फिर आपका केमिस्ट्री. नाउ आई वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड एंड देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने 1-2 सीनियर्स को पिंग किया फेसबुक पे. एक जना ने एक्चुअली स्विच किया था. आई सॉ दैट ही हैड स्विच्ड फ्रॉम केमिस्ट्री टू PSIR एंड फिर उनका क्लियर हुआ था. तो मैं पूछना चाह रही थी कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्या इश्यू रहे. एंड देन ही टोल्ड मी कि देखो केमिस्ट्री में मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, PSIR में आई कुड डू दिस दिस दिस. तो दैट सॉर्ट ऑफ मेड मी सॉलिडिफाई मेरे दिमाग में कि मैं PSIR ले सकती हूँ. अब कमिंग टू आर्ट्स ऑप्शनल्स, मुझे एंथ्रो का कभी सिलेबस उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट. सो इट केम डाउन टू इधर सोशियोलॉजी या फिर PSIR. आई वॉज कंफर्टेबल विद द करंट अफेयर्स पार्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्स्ट्रा पढ़ने का. इनफैक्ट इट ओनली एडेड फॉर माई GS प्रिपरेशन. एंड अनदर रियली बिग बेनिफिट दैट आई हैड विद PSIR वॉज जो ऑप्शनल का सिलेबस के साथ ओवरलैप है, GS के साथ ओवरलैप, दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज ऐसी समय कम था. तो ऑल दिस सोशल लाइक ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है आपका क्लियर, GS2 पूरा आपका मोटा मोटी क्लियर हो जाता है. येस, द स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर्स इज वेरी डिफरेंट बट कंटेंट तो मोटा मोटी वही सरकारिया कमीशन, वही पूंची कमीशन, वही कोट करना होता है. सो दैट गॉट डन. आपका IR बहुत जबरदस्त हो जाता है, इट बिकम्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग. इंटरनल सिक्योरिटी वाले के छोटे छोटे सेक्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं. पेपर 1 का सोशो वाला जो सेक्शन है वो वाले काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं. तो वो ओवरलैप मुझे बहुत हेल्पफुल रहा. सो दैट वाज आल्सो अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं PSIR लूं. मार्केट में कंटेंट वाज इजीली अवेलेबल. टेस्ट सीरीज that is also available. That was also another factor which I chose, and this is a very important factor in fact because मैंने देखा है, for example economics, now I don't know the situation in market but economics में back then it was not very structured. content एक जगह था ही नहीं, लोग पता नहीं कहाँ से किताबों से निकाल निकाल के content पढ़ रहे थे. तो उतना मेरे पास ना समय था ना पेशेंस था किसी भी सब्जेक्ट के साथ. तो आई जस्ट सॉ कि मेरे लिए जो रेलेवेंट होगा और जो मेरे लिए इजी होगा, अकॉर्डिंगली आई वेंट विथ इट. बट येस, नंबर 1 थिंग आई वुड सजेस्ट इज इंटरेस्ट होना चाहिए बिकॉज यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क. एक्स्ट्रा मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस बिकॉज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है फॉर PSIR, फॉर गेटिंग दोस मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट, मल्टीपल स्कॉलर्स व्यूज वगैरह. सो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज फाइन विद दैट. सो या दैट्स हाउ आई डिसाइडेड. ऐसे का सीन ये है कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट, मतलब शुरू में मत करना. GS 1 2 3 4 हो जाने दो प्रिपेयर. आफ्टर दैट
ऐसे का यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द जो कॉपी चेक करता है उसका क्या फंडा है ऐसे को लेके. ऐसे इज नॉट लाइक अ जीएस आंसर. उसको दे डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू डंप नॉलेज ऑन देम. वहां पे इट्स मोर अबाउट द फ्लो, द स्टाइल ऑफ राइटिंग. आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? ऐसे एब्रप्ट टाइप का तो आंसर नहीं बन रहा है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है. तो उन चीजों के लिए अपार्ट फ्रॉम, देखो आपका जो जनरल नॉलेज है जीएस 1 2 3 4 का, दैट ऑल ऑफ इट कम्स हेल्पफुल हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एक्स्ट्रा यू डू इज you prepare some intros. यहाँ पे भी इनफैक्ट introductions are really helpful and ऐसे में तो स्पेशली हेल्पफुल. आप कोई एक ऐसे पैराडॉक्स टाइप का दिखा सकते हो इन द स्टार्टिंग, या फिर आप कोई एक ब्यूटीफुल स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो दैट यू सॉर्ट ऑफ लिंक टुवर्ड्स द एंड. या अगर कोई अभी रिलेवेंट इंसिडेंट हुआ था उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए स्टार्ट कर सकते हो, बट मेक इट समथिंग विच कैचेस द आई ऑफ द रीडर. ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ, सो व्हाट कम्स नेक्स्ट. वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हुए द इंट्रोडक्शन शुड बी बिल्ड. नाउ इन द फ्लो, जो हमारा किस तरह से फ्लो आना चाहिए वाइल व्हेन यू आर प्लानिंग. लिखने से पहले आई ऑलवेज प्लान, लाइक फॉर एक ऐसे तो आई वुड टेक अ गुड 15 minutes टू प्लान माई ऐसे with the examples, with the sub themes that would go in, and then लिखना शुरू करती थी. तो उसमें फिर आप सेक्शंस बनाते हो कि क्या क्या आना चाहिए. वहां पे स्पेशली आपके एब्स्ट्रैक्ट एसेज, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो लाइंस आ जाते हैं आजकल, वहां पे काफी हेल्पफुल होता है. बिकॉज आप एग्जाम्पल सोच लेते हो कि ये वाले में मैं ये वाला एग्जाम्पल दूंगी, ये वाले में मैं ये वाला कॉन्सेप्ट दूंगी. तो उनको आप लिख लो, गेट दैट फ्लो रेडी. सब हेड सोच लो. आई वुड स्टार्ट अ new, like let's say every 2 paragraphs, 2 3 4 paragraphs, I would start with a good subhead कि जैसे वे फॉरवर्ड नहीं लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट, एंड देन यू स्टार्ट द कंक्लूजन पार्ट, लेट्स से, और इज दिस द एंड ऑफ द रोड, एंड देन यू ब्रिंग द चैप्टर इन. उस तरह से उसको करते हुए, एंड देन द कंक्लूजन हैज टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. इट शुड टाई ऑल ऑफ इट टुगेदर एंड एंड ऑन अ गुड नोट. सो उन चीजों को पहले से प्लान कर लो, पहले से सोच लो, लिख लो, एंड देन यू स्टार्ट द essay writing. So these are the extra things that you have to work on apart from your general content, which will come from the GS papers only. अभी ना यू नो मोटा मोटी टॉपिक्स क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी इकोनॉमिक्स, वो तो वो पता है. आई वुड सजेस्ट थोड़े बहुत टॉपर्स वीडियोस देख लो. And in the so you're targeting 2024, right? So like let's say next 3 months 4 months you can dedicate to prelims preparation. But अब आपके पास पूरा साल है तो you prepare prelims and mains perspective साथ में, like that should not be an issue. पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ लिया, आपका स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होता है. तो लेट्स से जैसे सर का क्यूईपी का कोर्स है, तो वही वाले पॉलिटी के टॉपिक्स जो आएंगे उनको साथ में लिंक करते गए. ठीक है, जो मैंने बोला कि नोट्स में एग्जाम्पल्स अच्छे आ जाने चाहिए, इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स आ जाना चाहिए, थोड़ा आंसर राइटिंग का साथ साथ में यू कैन स्टार्ट. एंड उन सबको करते हुए लेट्स से यू कैन गिव द नेक्स्ट, इफ यू आर डूइंग प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर, यू शुड गिव अनदर 5-6 months. वो कर सकते हो. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मोटा मोटी समय कितना लगना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन आपको ऑप्शनल का करना होगा, दैट वुड टेक अप अनदर 2-3-4 months बेस्ड ऑन वॉट एवर योर ऑप्शनल इज. एंड देन द रिविजन साइकिल स्टार्ट्स, देन द प्रॉपर आंसर राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट्स, वेर यू एक्चुअली गो अबाउट राइटिंग फुल आंसर्स, फुल टेस्ट वाले आंसर्स. दैट थिंग यू कैन डू, आई थिंक दैट. अच्छा, टेस्ट सीरीज. ओके, प्रीलिम्स का तो जनरली ये फंडा है कि बिफोर द प्रीलिम्स 15 दिन पहले तक टेस्ट सीरीज मत दो, जस्ट डू द रिविजन. बट बिफोर दैट 2 months तक यू राइट 1 prelims paper every day if that is possible, or every alternate day, just to test how deep in the water you are, वो देखने के लिए. So that मोटा मोटी is helpful. मेंस का तो you do a schedule बना लो कि हर संडे जाके देना है, या हर वीकेंड पे देना है, या इस पर्टिकुलर डे पे देना है, इस समय पे देना है. एंड डू अ प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर, लाइक 3 hours है तो प्रॉपर 3 hours में लिखना है. एंड दिस शुड कम बाय द वे इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. शुरू में आप आराम से लिखो, टेक योर ओन टाइम, ट्राई टू बिल्ड द इंट्रोडक्शन, ट्राई टू बिल्ड द कंक्लूजन. उस टाइम पे हड़बड़ी मत करो, बिकॉज तब एकदम क्लियर नहीं आइडिया कि क्या करना है. बट आफ्टर अ पॉइंट यू शुड स्टार्ट स्टिकिंग टू द टाइम, कि अगर
10 मार्कर है तो इतना ही टाइम मिलेगा, 15 मार्कर है तो इतना ही टाइम मिलेगा, और स्टिक टू द टाइमलाइन, और उसके हिसाब से राइट एन आंसर। उसके बाद फिर अगर इनकम्प्लीट भी रह जाए तो कोई बात नहीं, विल डू इट द नेक्स्ट टाइम, उस तरह से। बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फील द प्रेशर ऑफ द क्लॉक। अगर वो अभी नहीं फील करोगे ना, एग्जाम हॉल में सडनली जब प्रेशर पड़ता है, सब लाइक इट विल गो टू वेस्ट। मतलब देन यू विल बकल अंडर द प्रेशर, यू विल बी लाइक यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। सो वो कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर once or twice डेली फील करो। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट एन फुल टेस्ट, यू कैन ट्राई 1-2 आंसर्स एवरी डे। मैं रात को वही करती थी, मैं लिखने का भी टाइम नहीं होता था मेरे पास, तो मैं ये सोच रही थी अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये इंट्रो होगा, ये कंक्लूजन होगा, ये मेरे सब सेक्शंस होंगे, ये एग्जांपल्स में डाल दूंगी। यू कैन टेक द PYQs, यू कैन टेक द क्वेश्चंस व्हिच आर इन द मार्केट, एनीथिंग, बट प्रेफरेबली PYQs पे ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज उसी टाइप के, उसी पैटर्न के, उन्हीं मतलब लोगों ने जो उन्होंने वो क्वेश्चंस लिखे हैं, दे विल बी द वंस गिविंग द क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। एथिक्स, अगेन ये चीज मैंने की थी, मैंने देखा एथिक्स में जनरली लोग इंट्रो कंक्लूजन बहुत ज्यादा करते नहीं थे प्रिपेयर पहले, ठीक है। अनदर थिंग केस स्टडीज में विच रियली हेल्प्स इज, अलग अलग तरीके होते हैं उनको अप्रोच करने का। केस स्टडी में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि 3, 3.5, 2.5, 3 पन्ने भरने होते हैं, और उसमें कुछ लॉजिक भी होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं भर सकते। तो उनमें अलग अलग आंसर राइटिंग स्टाइल हो सकता है। लेट्स से सिचुएशन है, कोई सिचुएशन में व्हेन यू आर डीलिंग विद कोई इमरजेंसी है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, वहां पे टाइमलाइन बहुत जरूरी है। टाइमलाइन क्यों जरूरी है कि अगर तुमने लेट्स से फ्लड आया तो अगर तुम अलर्ट सिस्टम पहले स्टार्ट नहीं करोगे, बोलोगे मैं अपने बोट्स भेज दूंगी, तो लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा ना कि जितने रेस्क्यू मतलब बच सकते हैं वो बच जाएं। तो वहां पे टाइमलाइन बहुत जरूरी है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का क्वेश्चन हुआ, देन लेट्स से कोई आजकल वो वाले टाइप के भी क्वेश्चंस मेरे टाइम पे आए थे कि कोई एक लंबा सा पैराग्राफ कोड दे दिया और उस पर कॉमेंट करने को बोल दिया। तो ये चीज भी करती थी। लाइक सिविल सर्विसेज डे पे अवार्ड्स मिलते हैं, गुड गवर्नेंस अवार्ड्स मिलते हैं, इसमें कोई कोई ऑफिसर्स आते रहते हैं न्यूज में, कोई IAS ऑफिसर ने कुछ अच्छा कर दिया, कुछ IPS ऑफिसर ने कर दिया, उनका एग्जाम्पल्स बना लिया, उनका लिस्ट यूज करा और उनके जो रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको कोट किया। सो फॉर एग्जाम्पल एम्पैथी को एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही आया था। बहुत एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, हजारों टाइप के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बट व्हाट इज योर एग्जाम्पल दैट मैटर्स। तो मैंने क्या दिया था उस टाइम पे, कुछ तो रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह था विच फेल्ड, एंड एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर हैड ऑन मीडिया, लाइक इन फ्रंट ऑफ मीडिया, उन्होंने एम्पैथाइज किया था। उन्होंने बोला था विल कम बैक स्ट्रॉन्गर द नेक्स्ट टाइम वी डू दिस मिशन। So that's a huge example of empathy which is very relevant at that point. It tells the जो कॉपी चेक करे उसको बहुत चीजें पता चलती है, उससे पता चलता है भाई तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, यू आर वेरी अपडेटेड। वी आर ऑल्सो लिंकिंग द क्वेश्चंस वेल कि यार एम्पैथी का भी एग्जाम्पल इसको दिया जा सकता था, दैट थिंग इट टेल्स। तो ब्रिंगिंग आउट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी वैल्यूज का लिस्ट है, वैल्यूज के लिस्ट के अगेंस्ट जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो तब दिमाग में सोचना है कि दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लाइक लोग बोलते हैं कि अपने लाइफ के भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ से दे सकते हो। यस आई अग्री, यू कैन गिव, बट यार मेरे तो प्रोफेशनल लाइफ कुछ था नहीं उससे तो पहले मैं स्कूल में ही, कॉलेज में ही थी, तो वो उससे तो आते नहीं मेरे एग्जाम्पल्स। आई हैव टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज। तो वट एवर इज योर सिचुएशन इन लाइफ, उसके हिसाब से ट्राई एंड फाइंड। या वो बहुत ही लाइक पैचवर्क जुगाड़ टाइप का मेथड था। टुक द कंटेंट फ्रॉम द मार्केट, हैड टू रीड अप अ लॉट ऑन माय ओन, फिर उसको मार्क करती रहती थी। मतलब वो भी बनाने का टाइम नहीं था, लाइक आई डिडंट हैव टाइम टू मेक माय ओन नोट्स, उसी में हाईलाइट करके मार्क कर देती थी। एक करती थी कि थिंकर्स का जो लिस्ट है, हर थिंकर के अगेंस्ट 1 या 2 पन्ने मैक्सिमम, उसमें भर दिया सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आइडियाज, कीवर्ड्स क्या आने चाहिए, तो वो भरा था। दैट आई डिड। थोड़ा रेलिवेंट जो अभी के एग्जाम्पल्स है उनको भरते रहती थी एग्जाम्पल्स के तौर पे। एंड ये किया था कि जैसे कोई एग्जाम्पल मिला तो उसको ले जाके रेलिवेंट कहाँ पे है वो जगह जहाँ पे वो हेल्पफुल होगा, उसको वहां पे फिट इन कर दिया कि जब भी मैं रिवाइज करूँ तो वो वापस आ जाए। It was a lot of patchwork. I would not suggest someone to do it between prelims and mains. But yeah, जब notes prepare करो ये ध्यान में रखो कि theory के concepts को recent examples से link करना है। You don't have to write it as a GS answer. You have to bring in the different schools of thought, different perspectives, and then bring a balanced conclusion. हमेशा भी balanced conclusion लेने की जरूरत नहीं होती है. You can take an extreme conclusion based on if you are able to justify your stand. GS 1, 2, 3 कंप्लीट होने के बाद रिवाइज किस ऑर्डर में, कोई ऑर्डर नहीं है,
कोई ऑर्डर ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर मैंने इस संडे को अपना टारगेट रखा है कि 1 का लिखना है तो 1 का रिवाइज कर लिया, 2 का लिखना है तो 2 का रिवाइज कर लिया, बेस्ड ऑन दैट। लेट्स से प्रीलिम्स तक, तो जब प्रीलिम्स आता है तो प्रीलिम्स का फोकस हो जाता है। तो प्रीलिम्स के बाद जनरली थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सब कुछ नया नया लगता है कि पढ़ा था जो याद नहीं आ रहा है। तो प्रीलिम्स के बाद एक तो डू दिस की 50, जिसका भी ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है अच्छे से, टेक 15-20 डेज ऑप्शनल को एकदम सॉलिड कर लो कि यस यू आर डन, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज। उसके बाद यू स्टार्ट विद द जीएस पार्ट। तो तुम्हारे नोट्स रेडी हैं, तो बेस्ड ऑन कितना टाइम बचा है, अब थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं ना शायद टाइम बिटवीन, 3.5 महीने हैं, तो 2-2.5 महीने जो बचे उसमें आप एक अपना स्केड्यूल बनाओ कि किस दिन आपको एग्जाम लिखना है, किस फ्रीक्वेंसी से लिखना है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो जैसे अगर हफ्ते में एक बार आप आंसर टेस्ट लिख रहे हो वीकेंड पे, वो जो भी टेस्ट लिखने वाले उसके हिसाब से रिवाइज करते जाओ। तो नंबर ऑफ टाइम्स फिर रेलेवेंट नहीं हो जाता है, फिर ये कि कितने अच्छे तरीके से उस टेस्ट को दिया, उसके लिए किस तरह से रिवाइज किया, दैट मैटर्स। पहली बात तो एक चीज ये है कि वॉट एवर यूर रीडिंग टूडे क्लास में बहुत सारा होता है, इट्स टू मच टू टेक इन अ सिंगल डे। एक बार जाके रात में उसको देख लिया करो, एटलीस्ट जस्ट ग्लैंस थ्रू कि क्या क्या पढ़ा है, और अगले दिन क्लास में क्लास शुरू होने से पहले उसको वापस देख लो। तो 2 बार तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, मतलब कितने पानी में हो। अगर यू आर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट, सपोज दिस इज लाइक कि अभी तो आप लोग फ्रेश हैं तो आपको पूरा का पूरा नया फर्स्ट टाइम पढ़ना है, तो वो तो इट विल टेक अप अ गुड चंक ऑफ टाइम, लाइक आई सेड 6 महीने टाइप तो लग जाएगा। उसके बाद देन यू स्टार्ट द साइकिल। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रीलिम्स के कितने पास है, जो 1-2-3 महीना रहेगा, तब आप अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, रिविजन कीजिए, एंड फिर आप प्रीलिम्स वाले मोड में चले जाइए। आई एम वेरी प्रैक्टिकल विद, आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल विद द एग्जाम। मैंने बोला था सर को कि सर मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट में दूंगी, इफ आई डोंट सी माई सेल्फ गोइंग समवेयर तो आई एम लीविंग दिस, आई हैव अ बैकअप, आई विल डू दैट। But I was very practical. I was not very emotionally charged while preparing for the exam. That made me keep my sanity intact. मतलब मेन तो यही है, वरना when you keep seeing other people like तुम्हारी बैच में तुम्हारे जो कॉलेज के कलीग्स हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, they are earning, they are उस टाइम पे ऐसे लगता है कि उन लोग कुछ जिंदगी के साथ कर रहे हैं अपने, और हम बैठ के आई डोंट नो, एम आई वेस्टिंग माई टाइम, इज दिस इवन गोइंग एनीवेयर, ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं। सो फॉर दैट बीइंग वेरी प्रैक्टिकल विद द एग्जाम रियली हेल्प्ड। Coming to motivation, so I'll tell you there are certain sectors which I was really excited to work in पहले भी, like education हो गया, social welfare हो गया, आंगनवाड़ीज बच्चों के साथ, I really enjoy dealing with this. So after coming to the job, that is something that really excites me ki, for example, I'll tell you what I'm doing in my subdivision right now. There's an NGO called Pratham, aap sabne suna hoga, ASAR report it brings out. So we had a good session with them in the academy also, but I kept reading up on it, got in touch with the state Pratham head, and now we're doing an initiative in 100 schools. It's a test initiative in 100 schools for class 4 and 5 students, to improve their learning outcomes. They have their own pedagogy and material and everything, but it's a very wonderful thing because you're building the capacity of the teachers, the grassroots का capacity build करते हो। कोई अलग से नया classroom नहीं ला रहा है, कोई digital वो involvement नहीं है, it is building the basic fundamental grassroots capacity basically. So that's one initiative that I'm getting to involve in. I am taking the leadership of the whole thing, and all my magistrates and me, we monitor how it is developing. I keep getting feedback from the ground कि अच्छा ये वाला चीज ये काम कर रहा है फील्ड में, ये वाला चीज बच्चों को नहीं समझ रहा है. So that is something that really excited me, and now I'm able to take it off. So I'm very happy with that. This job is, I'll honestly say that the whatever 2.5 years I've had in the service, it has been a one hell of a journey. Matlab, there's just so much learning involved. Every day you have to keep yourself updated about all the laws, acts, regulations. But apart from that, agar kisi sector mein enthu hai, तो you get to read up on it, get to engage with them. You have the funds and the functionaries कि तुम वो काम करवा सको field में. There'll be people who will actually listen to you. So that is very exciting. So, for example, coming to Assam, okay, ये थोड़ा too soon हो जाएगा, but when I got Assam cadre, everyone was like कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. That was the reaction everyone gave me कि भाई तुम कहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए, कहाँ तुम छत्तीसगढ़ में रहते हो, उड़ीसा के हो, कहाँ पहुंच गए. That was the reaction everyone gave me. But I believe that it has been a huge boon
I love my cadre and I have enjoyed every moment of it because there's just so much to explore and learn. Assam, any which ways, right now is not as developed as a lot of other states. So there's just a lot of scope to do good work. So, for example, apart from this, we have this menstrual hygiene awareness program that we took up from another NGO called Menstrupedia. So they have this whole awareness video along with how to train that मतलब teach the young girls about all of this. उसके लिए एक वीडियो है बट उसको एक कोई मॉडरेटर उसको कन्वे करेगा बीच बीच में पॉज करके दे विल डिस्कस दिस होल थिंग. इट्स अ ह्यूज टबू सब्जेक्ट एंड टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आउट अमंग द गर्ल्स दैट वाज अमेजिंग. पहले वो बहुत शाई होंगी बट द कॉन्फिडेंस विथ विच दे विल कम अप विद द क्वेश्चंस that is so satisfying to see. Apart from that, let's say you have a lot of routine work also, which is quite interesting. आप जिस scale पे काम करते हो, it just boggles your mind. I'll tell you the latest thing that I'm working on. So हमारे वहाँ पे eKYC हो रहा है. आयुष्मान भारत का कार्ड एक बनना है. So now imagine fair price shops का जितना हमारे राशन कार्ड होल्डर्स जितने हैं सबको बनाना है, सबका. It's a saturation mode project basically. तो मेरे सब डिविजन में there's around 3 lakhs of population with ration cards. अब इनको सबको कवर करना है. 3 lakh is not a joke with the kind of manpower we have. Around 200 people are directly involved in this. उनके पास ID है, वो ऐप में जाते हैं और उसको भरवाते हैं. Now, let me tell you about. So this is very interesting, and I wanted to discuss this with you also. It was an eye opener because so we had a meeting. I have 2 health blocks. एक health block में all my ASHA workers, ASHA supervisors, we were a lot of different workers. कुछ contractual, कुछ non-contractual, सब आए हैं. Imagine अप्रैल की धूप में करंट तो रहता ही नहीं था वहां पे, तो वहां पे करंट नहीं था. वी आर सिटिंग इन अ हॉल, माइक सिस्टम कुछ नहीं है, अटर केओस, एंड वी हैव टू डू लाइक एक्सप्लेन टू देम कि करना कैसे है. वन सर्वे दैट वी वर डूइंग कि भाई फाइनली हुए कितने हैं. वन ऑफ द आशा वर्कर्स, आई रिमेंबर शी हैड कैटरैक्ट इन हर आई. वो सामने बैठी थी, मुझे ऐसे देख रही थी लाइक क्या चल रहा है, व्हाई इज दिस लेडी हियर. एंड एक तो मैं भाषा, आई कैन स्पीक फेयरली गुड असमीज, आई कैन स्पीक फेयरली गुड असमीज. आई मतलब उड़िया से काफी सिमिलर होता है, but they're all Bengali. I have a significant minority community and all of these community people are Bengali. उनका Bengali भी नहीं समझ आ रहा था मुझे, because I understand Bengali also, but उनका नहीं समझ आ रहा था. For some reason it was some mixed वो. तो वो एक तो वो barrier, language barrier. 3 of the ladies said मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है. वन ऑफ देम सेड मेरी बहू करती है, एक ने बोला मेरा बेटा करता है, एक ने बोला अरे मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है वो करता है. मैंने बोला उन तीनों को क्यों नहीं लेके आया आप. तो जो द लेडी जिसकी बहू करती है, शी सेड घर का खाना कौन बनाएगा. Assamese ladies are very confident. The way they come and speak with you ना, मतलब मानना पड़ेगा. It's very fun. तो ठीक है बैठो यार, जो समझना है समझ लेना. एवरीवन इज टॉकिंग विथ एवरीवन. ऐसा लग रहा है मंडली चल रही है, सब कुछ शांत करो, पहले चुप करवाओ. वो केओस चला आधे घंटे तक. सबके फेयर प्राइस शॉप का लिस्ट बांटना था. तो हमने क्या किया, अब मैंने बोला कि एक आईडी के अगेंस्ट एक फेयर प्राइस शॉप होगा, तुम जाओ अपना एरिया कवर करो. कैसे करोगे, तुम्हारा हेडेक है. एक किसी का कोई एरिया में ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, उसका केओस चल रहा है. मतलब मेरा नाम गलत लिख दिया आपने. अरे भाई बहन करेक्ट कर लो, मतलब why are you bothering us with these kind of doubts. तो सबको शांत करके बिठाया. Now these ladies Assamese पढ़ लें वही बहुत है, ठीक है. ऐप इज इन इंग्लिश, ऐप इज कंप्लीटली इन इंग्लिश. अब उनको फोन खोल के वो ऐप दिखाना है. आधों के पास स्मार्टफोन नहीं है, बाकी आधे बोल रहे हैं कि ठीक है फोन खोल के चला रहे हैं ऐप. अब मैं उनको ऐसे समझा रही हूँ कि अच्छा रेड का मतलब है नहीं हुआ है, लाइक दिस थिंग इज नॉट डन. ग्रीन का मतलब नहीं सॉरी, ग्रीन का मतलब था हो गया है, रेड का मतलब भी हो गया है. ओके, न्यूज टू मी. देन ग्रे का मतलब है नहीं हुआ है, ब्लू का मतलब है प्रॉब्लम है, ट्राई किया है बट नहीं हुआ है. This is how complicated that app is. ठीक है. Towards the end of the session we discover, oh there's another color, orange भी आता है उसमें. मैंने बोला ऑरेंज का क्या मतलब है. बोले अप्लाई किया था बट रिजेक्ट हो गया. मैंने बोला अच्छा. तो ऑल ऑफ दिस आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट. मुझे नहीं पता है हाउ दैट ऐप वर्क्स. वो मुझे लाके दिखाया कि मैम ऐसे ऐसे आता है, ये करने से इजी हो जाएगा. बोला ठीक है. तो अब फिर मैंने बोला एक साथ तो सबको मैं समझा नहीं पाऊंगी. सबको फिर मैंने ग्रुप में बांटा कि अरे यार तुम उसको जाके उस कोने में समझाओ, उसको जाके तुम उस कोने में समझाओ. ये सब चल रहा है. बाय दिस टाइम मेरा सांस फूल चुका था, गला मतलब इतनी जोर जोर से बोल बोल के.
मैंने 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए पॉज लिया, उतने में उन लोगों ने चाय बांटना शुरू कर दिया। वो एक अलग से, भाई मुझे चाय दो, मुझे चाय दो। मैंने बोले पहुंच जाएगा ना तुम तक, क्यों हड़बड़ी कर रहे हो। फिर उन्होंने पैकेट फूड बांटा, फिर उन लोग खा रहे थे। मैंने बोला मैं फिर से शुरू करती हूँ। बाय दिस टाइम माय एसडीएम जो मैम थोड़ा सा पॉज देते हैं, नहीं तो इन लोग उठ के चले जाएंगे कि क्या चल रहा है और कुछ नहीं समझेंगे। बोला हाउ डू यू डील विद दिस थिंग एवरी डे, लाइक हाउ डू यू डील विद दीज पीपल। दैट वाज सच अ ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर मी, बिकॉज ऐसी मैन पावर के साथ मैं कुछ भी कर पा रही हूँ, दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। बट आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट द फैक्ट कि उसमें से देयर वर अ फ्यू लेडीज हु वर सो स्मार्ट कि उन्होंने हमको ऐप में लाके इश्यूज बताए कि मैम ये वाला, वो ऑरेंज वाला एक आशा वर्कर नहीं लाके दिखाया कि मैम मेरे वाले में तो ये ऑरेंज आ रहा है, अब इसका क्या करना है। तो अदरवाइज हाउ वुड वी नो, हम तो बार बार ऐप नहीं यूज कर रहे ना, हमने तो बस समझा दिया कि ऐसे करना है करके। देन अनदर लेडी कम्स अप टू मी एंड शी इज लाइक कि देखिए मैम मैंने इतना टारगेट अचीव किया है, एनआरसी में भी मुझे अवार्ड मिला है, इसमें भी मुझे अवार्ड चाहिए, तो आप मेरे को डबल 2 फेयर प्राइस शॉप दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ही को अवार्ड मिलेगा, आप ही के नाम पे जाएगा, आप अपने एरिया का कर लो बस। मैंने नहीं मैम मैं 2 जन का काम कर सकती हूँ, बट मुझे अवार्ड चाहिए। सी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट देयर मोटिवेशंस। इन सबको आप पैसे देके तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दैट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी। आशा वर्कर्स दे गेट सो हेवीली अंडरपेड एंड द काइंड ऑफ वर्क दे डू, इट इज commendable, but there are other motivations at work. There are some of them, वही साम दाम दंड भेड़ हर तरीके से चलता है, कुछ लोगों को डांट के करवाना पड़ता है, but there are ladies who have this kind of motivation. So I think these are the experiences which I think I would die for. Like these are the kind of experience I want to have day in and day out, and like there's a huge learning curve involved. So yeah, that way the job is fun. So yeah, thank you sir. Very good. Krishna.